Okay, so we'll continue the last lecture. Okay, so I think in last lecture I have given the introduction about the Fourier transform, how it is generated from the Fourier series. So in today's lecture also I will give the quick overview of that last lecture, and then we'll actually start the examples on this Fourier transform. Okay, so how you get that Fourier transform? So basically we know the formula for Fourier series in case of real. Okay, what is that formula? F of x is equal to a naught by 2 plus summation n runs from 1 to infinity. Okay, n pi x by L plus, let me add, plus bn sine of n pi x by L. This is the formula for Fourier series, and where this an, where this a naught, an and bn, these are called as Fourier coefficients. These are called as the Fourier coefficients. It can be calculated using the formula. For example, a naught is equal to 1 by L integration from c to c plus 2L, correct? F of x into an is equal to 1 by L integration from c to c plus 2L f of x into cos n pi x by L into dx. And in a similar way you can calculate bn, just replace this cos by sine. So I will not give you that formula. Okay, so this is all about the Fourier series in terms of real. Okay, स्पेशली मैं डायरेक्ट सेकेंडरी स्टूडेंट्स को वही बोल रहा हूँ कि मैं लिंक कर रहा हूँ प्रीवियस टॉपिक से, मे बी शायद वो आपने नहीं देखा है, बट डोंट वरी अबाउट दैट लिंक. इट इज जस्ट द इंट्रोडक्शन. ओके, एक्चुअल प्रॉब्लम्स आर टोटली डिफरेंट दैन द फोरियर सीरीज क्वेश्चंस. ठीक है, तो फोरियर सीरीज टॉपिक का और एक्चुअल जो एग्जाम्पल्स में लेने वाला उनका कोई रिलेशन नहीं है. ओके, इट इज जस्ट द स्मॉल इंट्रोडक्शन दैट हाउ यू गेट दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द फोरियर सीरीज. ठीक है, सो जस्ट try to understand this link. Okay, you get that Fourier transform from a Fourier series. Okay, so this is the formula which you have learned in engineering mathematics 1. Okay, this is your second unit, Fourier series. Okay, but the condition or the restriction for the Fourier series is what? It is applicable only for a periodic function. Correct? Or you can see this is the drawback for the Fourier series. And now there is one more representation of this Fourier series, okay, which is in terms of complex. And that is nothing but f of x is equal to, so it is again it is a Fourier series, but this is so the first formula is in terms of real, and second formula I will give you in terms of complex, and that formula is I think f of x is equal to summation n runs from minus infinity to infinity cn, correct, e raised to I n pi x by L. Correct? I hope it is correct now. Otherwise I will check. मुझे भी एक बार देखना होगा. Correct. E raised to n pi x by L. And now where the Cn is equal to what? Where the Cn is equal to 1 upon 2L integration minus L to L. Correct? F of u e raised to minus I n pi u by L du. ठीक है, तो ये कोई भी फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. मुझे बस यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है कि ये फोरियर सीरीज का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रियल. ओके, ये रियल का फॉर्मूला है और ये फोरियर सीरीज का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स. ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया है? ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस फोरियर सीरीज व्हिच इज डिफाइंड for a periodic function. It is also defined for a periodic function, and we want a series which is for a non-periodic function. Okay, what is your aim? We want a series for a non-periodic function that is calculated that is defined by a form which is called as Fourier integral form, and that is nothing but the Fourier integral form. Now you get that non-periodic Fourier integral form from the periodic Fourier series. Okay, so just so to do that, what we have to do is just extend that fundamental period. This L is called as period. Extend this fundamental period to infinity, and now just put the value of Cn here
ठीक है, do some simplification, replace summation by the integration. Okay, after doing all this calculation, okay, that Fourier integral representation, that is f of x is equal to integration from minus infinity to infinity, integration from minus infinity to infinity, I think here 1 upon 2 pi, then f of u e raised to minus I lambda u into e raised to I lambda x du d lambda. This is called as the Fourier integral representation. This is called as Fourier integral representation. ये बस आप याद रखो. Okay, it is not expected that कि आपको ये प्रूफ पता होना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है. ठीक है, just try to remember this sequence. Actually from the Fourier series, just by extending the fundamental period to infinity, you will get a form which is called as Fourier integral form. वर्ड से ही समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रल फॉर्म में मतलब आपका जो फॉर्मूला वो इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल उन्होंने डिफाइन किया. Okay, so this is your main formula. This is called as the Fourier integral form. Now here we'll just do some simplification. Means what? Here I will replace this value by minus infinity to infinity f of q e raised to I lambda u into du. This value by a specific notation that is called as f of lambda. So if I replace the value integration from minus infinity to infinity, correct, f of u e raised to minus I lambda u du. बस मैंने क्या किया है, ये जो वैल्यूज थे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ I lambda u du, I just replace this value by capital F of lambda, and this is called as the Fourier transform. This is called as the Fourier transform of f of x. So always remember, जो आपका given f of x है उसका जो Fourier transform है which is denoted by capital F of lambda, and it is defined as integration from minus infinity to infinity f of u e raised to minus I lambda u du. Okay, and the inverse Fourier transform is nothing but the Fourier integral form. Okay, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आगे इमीडिएटली मुझे ये पार्ट चाहिए. इनवर्स Fourier ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट द Fourier इंटीग्रल फॉर्म. क्या करना है, बस यही फॉर्मूला रिपीट करना है. ओके, जो आपने डिफाइन किया था ना एफ ऑफ लैम्बडा से, उसको रिप्लेस करो. मींस व्हाट, आई विल राइट दैट सेम फॉर्मूला अगेन, दैट इज एफ ऑफ एक्स, इट इज नॉट विजिबल. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 upon 2 pi, करेक्ट, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ये जो टोटल वैल्यू इसकी जगह पे अभी आपको क्या रखना है, बस कैपिटल एफ ऑफ लैम्बडा है ना. ये बाहर का क्या है, ई रेस टू आई लैम्बडा एक्स एंड इनटू डी लैम्बडा एज इट इज. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, और वी कॉल इट एज इंटीग्रल फॉर्म. ओके, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रल फॉर्म. ठीक है, तो यहां पे इस टॉपिक में एक तो आपको करना क्या है, ओके, either you have to calculate the Fourier transform or either you have to calculate the inverse Fourier transform. इतना ही है इस पूरे सिलेबस में. एक तो आपको Fourier transform कैलकुलेट करना है, या तो इनवर्स Fourier transform कैलकुलेट करना है, या ये एक वर्ड आ सकता है कैलकुलेट दी Fourier integral. These are the only 3 topics in your syllabus. But Fourier integral is similar to inverse Fourier transform. उसमें भी क्या डिफरेंस है, आई विल टेल यू लेटर ऑन. अभी इमीडिएटली ज्यादा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है. ओके, ये था आपका एक पार्ट. So now you will have these 2 formulas. Okay, I will show you. So what is your Fourier transform? The Fourier transform f of lambda is defined as f of lambda equal to minus infinity to infinity f of u e raised to minus I lambda u du. It's called the Fourier transform of f of x, right? And let me correct, there are some mistakes here. Then quickly, this is called as inverse Fourier transform of capital F of lambda. Just a minute. Okay, I think this is enough. Okay, so the Fourier transform is defined by f of lambda is equal to minus infinity to infinity f of u
e raised to minus I lambda u du. This is called as the Fourier transform of f of x. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया. एंड द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एक्चुअली फंक्शन, द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x, sorry, the inverse Fourier transform of f of lambda is actually f of x is equal to 1 by 2 pi integration from minus infinity to infinity f of lambda e raised to I lambda x d lambda. ओके, अभी आपको ये कैसे भी करके तो फॉर्मूला तो याद करने होंगे, तब जाके आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे. ठीक है, so always remember when your integration is there with respect to du, it means we have given the Fourier transform. If your given integration, if your given integral is there with respect to d lambda, it means we have given the inverse Fourier transform. Inverse, or we also call it as integral. तो इसे यही एक ही बार पार्ट रिपीट कराओ, और we also call it as integral form. करेक्ट? ओके, अभी आगे आपको क्या करना है? ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस टू फॉर्मूलाज? अब ये तो क्लियर हो गया, ये आपका गिवन फंक्शन है f of x. एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो, दैट इज नथिंग बट f of लैम्बडा, तो ये फॉर्मूला यूज करना है. या तो एग्जाम में f of लैम्बडा गिवन होगा, आपको उसका इनवर्स कैलकुलेट करना है, दैट इज नथिंग बट सेकंड फॉर्मूला. ठीक है, तो यही दो टाइप के क्वेश्चन है आपको, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म या तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट. ओके, हाँ, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस टू फॉर्मूलाज? ओके, एक्चुअली अगर आप ये इंटीग्रल, दोनों केस में अगर आप इंटीग्रल अच्छे से फोकस करते हो, ओके, ऑलरेडी वो उस इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल का टर्म आ रहा है. ओके, एंड वो जो एक्सपोनेंशियल का टर्म आ रहा है विच इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, बिकॉज वी नो दैट e raised to I theta is actually equal to, what is that value? Cos theta प्लस आई साइन थीटा. तो बेसिकली दोनों जगह पे जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहे, दिस टू वैल्यूज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो बेसिकली ये इंटीग्रल जो आपको सॉल्व करना है, दैट इंटीग्रेशन इज देयर इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, विच इज नॉट द इजी जॉब फॉर ऑल. ओके, इसलिए आप क्या करने वाले हो? ओके, हियर वी कैन सिंप्लीफाई दिस टू फॉर्मूलाज व्हेन योर फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन. मतलब क्या होगा जब आपका फंक्शन इवन है, if your given function f of x is even, then there is one simplification, or you can change this formula. Okay, in a similar way, if your function is odd, that can also you can change this formula. ठीक है, अभी इवन फंक्शन के डेफिनेशन क्या है? those who don't know the definition of even and odd. इवन फंक्शन मतलब क्या करना है? अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो, and if your function is remain unchanged, then we call it as even function. For example, cos function, cos of minus x is again cos x, therefore it is even function. X square even function है. Can anyone tell me what is x into cos x? even है कि odd है? x into cos x even है कि odd है? odd में क्या होता है? अगर आप x को माइनस x से रिप्लेस करते हो ना, हाँ, so you will get a function differ by minus sign. You will get that same function differ by minus sign. तो यहाँ पे आप देखो x की जगह पे अगर आप माइनस एक्स रखते हो ना, तो you will get minus x cos x. So these two are equal, differ by minus sign, therefore it is an odd function. ठीक है, so this is all about the even function and odd function. Famous example of odd function is sin x, x cube. All these are the examples of odd function. Okay, तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि डायरेक्टली फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला या इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करना task है, because it contain the complex part. Let me add. Therefore, what we will do? Okay, if your given function is even function, then you can simplify this Fourier transform, or you can simplify this formula. Okay, तो आप अभी चेंज आप देखो, इसका प्रूफ में स्किप कर रहा. Okay, when your function is even function, this formula is actually equal to, or the value of f of lambda इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ये जो इंटीग्रल है ये 0 टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट होता है इन केस ऑफ इवन ना, एफ ऑफ यू तो एज इट इज. ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म टर्म था ना, उसके जगह पे खाली क्या आने वाला है? कॉस ऑफ लैम्बडा यू डी यू. सी द सिंपल फॉर्म. इफ योर फंक्शन इज इवन, देन द फोरियर इज जॉइन ऑन टाइम. ओके, इट डिस्टर्ब द होल लेक्चर. So if your given function is even function, then this formula changes to this. Correct? In a similar way, if your function
it's odd function, then this formula changes to f of lambda 0 to infinity minus infinity to infinity changes to this f of u, और ये जो टर्म था इसके जगह पे अभी क्या आने वाला है, साइन lambda u du, correct? And now it is always easy to solve this two integrals rather than this, ठीक है? बट इन दोनों इंटीग्रल के लिए कंडीशन क्या है, आपको ये चेक करना होगा कि फंक्शन आपका इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ठीक है? तो आपका ऑब्वियस क्वेश्चन होगा व्हाट हैपन इफ योर फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। अगर वो फंक्शन आपका नाइदर इवन नॉर ऑड है तो ही आपको इस फॉर्मूले से जाना है। इन दैट केस यू डोंट हैव एनी रिजल्ट ना, सो जो आपका ओरिजिनल रिजल्ट है उससे आपको जाना होगा। सो दिस फॉर्मूला इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई दिस सेम फॉर्मूला फॉर द नाइदर इवन nor odd function. Can anyone tell me example of neither even nor odd function? एक ऐसा फंक्शन आप दे सकते हो कि जो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है? Anyone? Exponential function. Okay, it is a famous example of neither even nor odd function. So remember that. ठीक है? So one example is e raised to minus x or e raised to plus x. It is independent on plus and minus sign. ठीक है? e raised to x or e raised to minus x. All these functions are neither even nor odd function. ओके तो ये तो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए इवन है तो ये फॉर्मूला आता है, ऑड है तो ये फॉर्मूला आता है, अगर वो इवन भी नहीं है ऑड नहीं है तो सेम फॉर्मूला आपको कैरी करना है, ओके, या यूज करना है। ओके नाउ व्हाट हैपन इफ यू आर इन केस ऑफ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है? सो अगेन इफ योर फंक्शन इज इवन, इन दिस केस ऑल्सो इफ योर फंक्शन इज इवन, इन दैट केस एंड अगेन इफ योर फंक्शन इज ऑड, ठीक है? Okay, so we'll see that change. If your function is even, now this formula changes to f of x is equal to 1 by 2 pi change होता है 2 by pi से, ठीक है? Minus infinity to infinity changes to 0 to infinity. This f of lambda as it is, and this e raised to I lambda x changes to cos lambda x d lambda, correct? And if it is odd, then this formula changes to f of x is equal to 2 by pi 0 to infinity f of lambda sin lambda x d lambda, दोनों सिमिलर है बस cos की जगह पे साइन रख दो, ठीक है? So these are the simplification when your function is even function and odd function, and obviously if it is neither even and nor odd, in that case you have to apply that same formula, ठीक है? Now just for the notation purpose, okay, if that integral contain cos, then we call it as Fourier cosine transform C. If that integral contains sine, then we call it as Fourier sine transform, ठीक है? And so this f of x is actually corresponding to even, therefore here this f of lambda is considered as fc of lambda because it is a Fourier cosine transform as we are talking about even function. If it is odd, then this f of lambda is actually fs of lambda. Is this clear to everyone? इस स्लाइड में कुछ डाउट्स है? Tell me quickly. Any doubt? बोलो, at least tell me yes or no. Any doubt in this slide? यही तो पूरा सिलेबस है, यही नहीं समझ में आ रहा तो आगे क्या एक्सप्लेन करो फिर मैं? ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है परफेक्टली कि अगर आपको किसी भी एग्जांपल में अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है या आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि वो फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। इवन है तो इवन का एक फॉर्मूला है, ऑड है तो ऑड का एक फॉर्मूला है। अगर वो इवन भी नहीं आ रहा है ऑड भी नहीं आ रहा है तो ही आपको ये दो ओरिजिनल जो फॉर्मूलेस मैंने दिए थे ना, इनका आपको यूज करना है, एंड दैट इज देयर इन योर टेबल। ये स्किप कर रहा है, ये छोड़ो। So everything is there in that table. Okay, फोरियर्स का फॉर्मूला, इनवर्स का फॉर्मूला, इवन है तो क्या चेंज होता है, ऑड है तो क्या सॉरी इवन है तो इसमें क्या चेंज होता है, ऑड है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या चेंज होता है, ऑड आता है तो इनवर्स में क्या चेंज होता है। लास्ट के दो फॉर्मूले थोड़े अलग है। लास्ट के दोनों में मैंने क्या दिया है कि अगर क्वेश्चन में ये आता है, इफ in a given question it's already there that calculate Fourier cosine, अगर उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है कि Fourier cosine यूज करो तो आपको डायरेक्टली ये Fourier cosine का फॉर्मूला यूज करना है, वही मैंने नीचे कॉपी किया है।
अगर उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है कि फोरियर साइन का यूज करो तो डायरेक्टली फोरियर साइन का यूज करो, दोनों में, एक तो ये या एक तो ये, कोई भी आने दो। ओके, सो नाउ विल एक्चुअली स्टार्ट द एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स एक्चुअली मैंने here I divide this all examples in 3 type. Okay, so your type 1 is actually, it's not working, just 1 minute. So your type 1 is actually the examples on Fourier integral representation. Okay, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंटीग्रल का मीनिंग आपको मैंने पहले ही बोला है, इंटीग्रल इज नथिंग बट द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इट इज एक्चुअली नथिंग बट, और इट इज नथिंग बट द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। या इनवर्स के जो भी फॉर्मूलेज है वही आपको रिपीट करने हैं। ओके, नाउ सो देयर आर 3 formulas as far as the inverse is concerned. One is your regular formula, इनवर्स का जो रेगुलर फॉर्मूला है वो, अगर इवन फंक्शन है तो ये एक फॉर्मूला आता है, ऑड फंक्शन है तो ये एक फॉर्मूला आता है। तो आपको इनिशियली टू सी द एग्जांपल्स ऑन दिस 3 फॉर्मूलेज। ठीक है, हाँ, अभी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में और इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है। अभी के लिए एट दिस लेक्चर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि दोनों सिमिलर है, इनवर्स आने तो इंटीग्रल आने तो फॉर्मूला तो वही यूज करना है। यस, इन बोथ केसेस यू हैव टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला, ओनली डिफरेंस इज दैट अगर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है तो आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल ही होगा, मतलब यही आपका आंसर आने वाला है। इसमें बस ये वैल्यू पुट करो, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। ओके, यहां पे भी बस आपको क्या करना है, एफ एस ऑफ लैम्डा की वैल्यू पुट करो, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। यहां पे भी आप ये वैल्यू पुट करो, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। ओके, एंड अगर आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है तो आगे आपको ये इंटीग्रल भी सॉल्व करना है, then that gives you the inverse Fourier transform. So there is a difference between transform and integral. Transform में तो वो इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ता है, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में आपको विदाउट इंटीग्रल बस वैल्यूज पुट करके आपको वैसे रख देना है, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वो शायद मैंने नीचे ऐड किया है, कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, साइन ट्रांसफॉर्म एंड put all these values in that integral. Don't solve that integral if you want to calculate the integral representation. ठीक है, and I will answer the first or I will tell you the first application of the Fourier transform, क्योंकि अभी तक मैंने ये एक्सप्लेन किया कि ये जनरेट कैसे हो रहा है, कैसे सब कुछ आ रहा है। Now I will give you the first application of this Fourier transform. So this Fourier integral representation actually used to calculate definite integral. पहले पता है डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना, ये एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क फॉर ऑल मैथमेटिशियन। ओके, और एज फार एज एप्लीकेशंस आर आल्सो कंसर्न, ओके, ज्यादातर केस में आपको डेफिनेट इंटीग्रल जनरेट हो जाते हैं जो जिनको आपको सॉल्व करना है, वो आपके रेगुलर इंटीग्रेशन नहीं आते जो आपने 11th-12th में लर्न किए थे। ओके, सो फॉर दिस पर्पज बेसिकली वी लर्न दिस ट्रांसफॉर्म। सो दिस इज यू कैन से वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। Now we'll actually start the examples. Okay. Okay, so we'll take this question. मैं यहीं पे explain करता हूँ। So let us discuss this example number 1. मैं आपको मैनुअली सॉल्व करके देता हूँ तो ये समझ में आएगा। जस्ट 1 मिनट, ये क्रैश हो रहा है। Okay, is this visible to everyone? Just give me confirmation. Is this visible? Okay.
नाउ प्लीज फोकस हियर, क्योंकि आपको एक ही एग्जांपल अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो भी ये थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी. इट इज नॉट अ थ्योरम, सो लेट मी राइट द सॉल्यूशन. ओके, तो क्या गिवन है, बाय कंसिडरिंग, ओके स्टेट, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होगा लैंग्वेज में ही, क्योंकि जो जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, एक्चुअली दो ही तो फॉर्मूलेज है, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म. ठीक है, बट लैंग्वेज की वजह से आपका कंफ्यूजन होगा कि एक्चुअली उन में से कौन सा यूज आपको करना है. ठीक है, तो इसलिए जस्ट फोकस ऑन द लैंग्वेज. ओके, कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, आपको इस क्वेश्चन से भी समझ में आएगा. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल. बाय कंसिडरिंग फोरियर साइन एंड कोसाइन इंटीग्रल, मतलब क्या क्या कंसिडर करना है एनीवन? फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है या फोरियर इनवर्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले कंसिडर करने के इनवर्स के करने, बोलो इनवर्स के. और उन्होंने ये भी दिया कि कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, इनवर्स साइन का यूज करो, इनवर्स कोसाइन का यूज करो. ओके, तो पहले मैं वो लिख लेता हूं. सो बाय फोरियर, सॉरी बाय इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, उन्होंने दिया कि ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, उसके आगे बाद में रीड करता हूं. सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? सो इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाय पाई, लेट मी टेक अनदर कलर, तो ये फॉर्मूले तो दिखाएंगे. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाय पाई, करेक्ट, 0 टू इंफिनिटी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा. ओके, एंड नाउ second is what? By, let me copy and paste, चेंजेस करता हूं मैं वहीं पे. तो सेकंड में क्या है, इन सेकंड केस बाय इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, करेक्ट, which is equal to 2 by pi 0 to infinity. Here you have to consider the fc of lambda, and instead of sine you have to consider the cos. Okay, I hope it's clear up to this part. जो उन्होंने बोला है वही मैंने नीचे लिखा है. उसके आगे उन्होंने क्या बोला है, ऑफ दिस फंक्शन, तो ये आपका गिवन फंक्शन है. ठीक है, पहले वो लिख लेता हूं. वी हैव f of x is equal to e raised to minus mx, we call it as equation number 1. बाद में क्या दिया है, हाँ, यूजिंग दिस प्रूव दैट दिस फर्स्ट इंटीग्रल इज इक्वल टू पाई बाय 2. या आपको प्रूव करना है वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वल टू पाई बाय 2 e raised to minus mx. ओके, अभी पहले इस पे फोकस करते हैं. ओके, सो कैन एनीवन टेल मी टू प्रूव दिस फर्स्ट इंटीग्रल, मींस टू प्रूव द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा अपॉन लैम्बडा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, आपको फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है या सेकंड फॉर्मूला यूज करना है? जस्ट टेल मी दैट. टू प्रूव दिस फर्स्ट इंटीग्रल, whether we have to use the first formula or whether we have to use the second formula, and why? Anyone? दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये यूज करने की, ये यूज करना है? Why? हाँ, क्योंकि यही तो आइडेंटिफिकेशन आपको करना है सारे एग्जांपल्स में. यहाँ पे उन्होंने क्लियरली दिया है साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा विच इज सिमिलर टू दिस साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा. तो एक्चुअली ये ऊपर का स्टेटमेंट अगर मैं डिलीट भी करता हूं ना, ये तो भी आपको समझ में आना चाहिए था कि मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे क्वेश्चन में आपको अभी एमसीक्यू में क्विजेस में सेट करने वाला हूं, या आपको डिसाइड करना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है. ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में साइन लैम्बडा एक्स या इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी लैम्बडा आ रहा है. मैंने आपको पहले क्लियर किया था, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी लैम्बडा मतलब इनवर्स होता है. उसमें भी चेक करो इनवर्स में साइन का जा रहा है या कोसाइन का जा रहा है, या विदाउट साइन एंड कोसाइन है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पहला फॉर्मूला है. ठीक है, और विदाउट साइन एंड कोसाइन है. ओके, डी यू आता है तो ये आपका फोरियर का फॉर्मूला है. उसमें भी ये चेक करो कि साइन का दिया है, कोसाइन का दिया है, या विदाउट साइन एंड कोसाइन का दिया है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये देख के आपको समझ में आना चाहिए कि डी लैम्बडा है, साइन भी है, तो मतलब ये क्या है, इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है. यहाँ पे भी कॉस लैम्बडा एक्स से डी लैम्बडा है, तो डी लैम्बडा और कॉस है, मतलब आपको फोरियर कोसाइन का यूज करना है. ओके, सो इसलिए ये स्टेटमेंट भी इतना रिक्वायर्ड नहीं है जो उन्होंने दिया है. ओके, so it is now clear that we have to use this first formula
टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। ओके, तो मैं पहले वो लिख लेता हूँ कि क्या करना है आपको कैलकुलेट। दिस इज यू आर क्लेम एट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। पहले लिख लेता हूँ क्या है, लैम्डा साइन लैम्डा एक्स, ठीक है, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आगे क्या आता है बाद में देखते हैं। चलो नाउ विल स्टार्ट। You have to use this first formula। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। फर्स्ट फॉर्मूले में अभी अननोन क्या है, एफ एस ऑफ लैम्बडा अननोन है, तो पहले आपको एफ एस ऑफ लैम्बडा कैलकुलेट करना है। ओके, सो एफ एस ऑफ लैम्बडा मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू e raised to minus I lambda u du। okay, put all these values, so which is equal to 0 to infinity, what is your f of u, f of u क्या है, f of u यहाँ पे इक्वेशन 1 में e raised to minus x, it's f of x, f of u is e raised to minus mu into e raised to minus I lambda u du। now can anyone tell me which formula here, which formula you have to apply here, can anyone tell me that कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला इसका, कैन एनीवन टेल मी दैट फॉर्मूला, मैंने दिया था वो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। यस, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, एनीवन, फॉर्मूला याद आ रहा है? ओके, मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ फिर से जिनको याद नहीं है। 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस ए एक्स, सॉरी यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गया, आई थिंक दिस इज साइन ट्रांसफॉर्म ना, सो ये नहीं आता, साइन में साइन ही आता है, साइन है तो एक्सपोनेंशियल का टर्म नहीं आता, साइन में साइन ही आता है, सो साइन लैम्बडा, हाँ करेक्ट, यू, यहाँ पे भी साइन लैम्बडा यू, हाँ नाउ इट इज करेक्ट। हाँ ओके, तो एक फॉर्मूला मैं आपको दिया था प्री रिक्विजिट लेक्चर में, ई रेज टू माइनस ए एक्स साइन बी एक्स का फॉर्मूला। ओके, और एक और दिया था मैंने आपको 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स का। इसको याद है ये, एनीवन, कैन यू टेल मी दिस टू फॉर्मूलेज, ये आपको मैंने पहले देख के रखे थे, ठीक है। ओके, सो what I will show you that formulas, okay, और इस स्लाइड में भी मैंने ऐड किए। सो रिमेंबर द e रेज टू माइनस x cos bx dx का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। cos के केस में एक्सपोनेंशियल का कोएफिशिएंट आता है और साइन के केस में साइन का ही कोएफिशिएंट आता है ऊपर b, ठीक है। सो रिमेंबर दिस टू फॉर्मूले। सो इन केस ऑफ cos योर आंसर इज a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या होता है बेसिकली, जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसका अपोजिट साइन है, अच्छे से चेक करो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। माइनस ए तो यहाँ पे प्लस ए आता है, यहाँ पे अगर प्लस ए आता तो यहाँ पे माइनस ए आना चाहिए, रिमेंबर लाइक दैट। और यहाँ पे बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यूजिंग दिस कैन एनीवन टेल मी वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, बोलो, फॉर्मूले मैंने दिया आपको, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, इसका आंसर क्या होगा? यस, what is value of this integral, बोलो जल्दी। what is value of this integral if I give you this two formulas, रेडीमेड formulas अगर मैं आपको दे रहा हूं, so can anyone tell me value of this integral, क्या आएगा नीचे, बोलो बोलो जल्दी। इतना कुछ डिफिकल्ट तो नहीं पूछा है, बोलो एटलीस्ट ऑथर्स कैन। हाँ, सो साइन के केस में बी आपका ऊपर आता है, दैट इज लैम्बडा अपॉन ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू यम है और बी की वैल्यू लैम्बडा है, सो इट इज एक्चुअली यम स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज योर इक्वेशन 2, दैट इज यू विल गेट दैट एफ एस ऑफ लैम्बडा। अब ये एफ एस ऑफ लैम्बडा की वैल्यू आप क्या करो, इस इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन 1 में यहाँ पे, ठीक है, या जो स्टार इक्वेशन जो था इसमें आप पुट करो, जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर। सो
फ्रॉम इक्वेशन स्टार, क्या था इक्वेशन अभी मैं लिख लेता हूं फिर से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाय 0 to infinity fs of lambda e raised to I lambda x, it is a sin ना, so sin का ही आना चाहिए, sin lambda x d lambda. Okay, so put this value, so which is equal to f of x की वैल्यू क्या है, f of x is e raised to minus mx. Okay, so f of x is e raised to minus mx 2 by pi 0 to infinity fs of lambda क्या था, lambda upon m square plus lambda square into sin lambda x d lambda. और आपका m क्या है, आपको क्या चाहिए, lambda sin lambda x upon lambda square plus m square. Okay, so lambda sin lambda x upon lambda square plus m square d lambda, ये सारे टर्म्स आपके लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, सो इट बिकम पाई बाय 2 टाइम्स e रेज टू माइनस mx. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. आपको वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे, पाई बाय 2 इंटू e रेज टू माइनस mx, एंड यू कैन चेक हियर व्हाट इज दैट वैल्यू, पाई बाय 2 इंटू e रेज टू माइनस mx. अभी सेकंड के लिए जाते हैं. सेकंड है cos लैम्बडा x d लैम्बडा, मतलब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. ओके, हैश यू कैन से, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. बट इस फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, एफसी ऑफ लैम्बडा चाहिए. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफसी ऑफ लैम्बडा, ओके, दैट इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. व्हाट इज दैट वैल्यू, इट इज इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू cos lambda u du. So which is equal to integration 0 to infinity f of u is e raised to minus mu cos lambda u du. So which is equal to, तो आपको मैंने फॉर्मूला दिया था e raised to minus ax cos bx में. cos है तो cos के केस में ये पार्ट ऊपर आता है, सो m अपॉन m स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ fc ऑफ लैम्बडा. ठीक है, तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी fc ऑफ लैम्बडा cos lambda x d lambda. Okay, put all these values here. f of x की वैल्यू क्या है, e raised to minus mx 2 by pi 0 to infinity fc of lambda की वैल्यू क्या है, m अपॉन m स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर cos lambda x d lambda. ओके, सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो, m इसमें कांस्टेंट है, सो 2m by pi 0 to infinity cos lambda x upon m square plus lambda square d lambda, and this e raised to minus mx, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, you will get pi by 2m e raised to minus mx which is equal to 0 to infinity cos lambda x upon m square plus lambda square d lambda, and you can check this also. Pi by 2m e raised to minus mx. Here you can see pi by 2m e raised to minus mx. Okay, is this clear? बोलो जल्दी. Is this question? Okay. So I will take one more time. इतना ही ले लेते हैं, फिर आगे का just 1 minute. तो फिर से मैं क्वेश्चन रीड करता हूं कि क्या क्या इसमें करना है. ओके, आपका अभी कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि देयर आर टू फॉर्मूलेज, वन इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, वन इन टर्म्स ऑफ यू. ओके, सो पहले आपके दिमाग में ये अभी फिट करो, लैम्बडा मतलब इनवर्स, यू मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था कि आपको क्या शो करना है, शो दैट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वल टू दिस. मैं भी ऊपर का पार्ट बाद में रीड करता हूं. पहला क्वेश्चन क्या है कि शो दैट दिस इंटीग्रल
इक्वल टू दिस, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आई विल एक्सप्लेन ओनली वन पार्ट, सेकंड आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। चलो, तो अगर मैं इस इंटीग्रल को अच्छे से देखता हूं ना, तो इस इंटीग्रल में क्या आ रहा है, साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा आ रहा है। ओके, डी लैम्बडा आ रहा है मतलब होता है इनवर्स, ठीक है। इनवर्स के बाद यहाँ पे साइन है तो ये होता है इनवर्स साइन। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, तो मैंने वो लिख लिया। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा है। बाद में आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, एफ एस ऑफ लैम्बडा चाहिए, है ना। तो एफ एस ऑफ लैम्बडा का फॉर्मूला लिख लिया, एफ ऑफ यू साइन लैम्बडा यू डी यू। ओके, फिर एफ ऑफ यू आपको गिवन है ई रेस टू माइनस एम एक्स, उसकी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, एफ एस ऑफ लैम्बडा की वैल्यू आ जाती है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ना, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ये जो टेबल है ना, ये एफ एस ऑफ लैम्बडा है ना, जब आपका फंक्शन ऑड आता है तब ये इसमें चेंज होता है ना, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था ना। इफ योर फंक्शन इज ऑड, करेक्ट, देन दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म चेंजेस टू दिस। बट अगर उन्होंने डायरेक्टली बोला कि साइन यूज करो, तो आपको यही यूज करना है डायरेक्टली, इवन एंड ऑड चेक करना ही नहीं है। इवन एंड ऑड कब चेक करना है, अगर उन्होंने ये नहीं दिया है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है तो आपको वो चेक करना है कि वो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है कि नाइदर इवन और ऑड फंक्शन है, ठीक है। इज इज क्लियर और नॉट। एफ एस मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म, स्मॉल एफ मतलब कैपिटल एफ मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, एंड स्मॉल एफ मतलब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। बोलो, और डाउट्स है तो बोलो बोलो, टेल मी, क्या नहीं समझ में आ रहा है वो बोलो। बोलो, डोंट वरी कि अदर स्टूडेंट्स को क्या फील होगा, उनके लिए भी रिपीट होगा ही ना। सेड, क्या नहीं समझ में आ रहा वो बोलो डायरेक्टली, सो आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट अगेन एंड अगेन। तो जस्ट लास्ट 1 मिनट में मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या इस टॉपिक में आपको करना है। ओके, एंड देन विल स्टॉप। ओके, तो बेसिकली इस टॉपिक में आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, या तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। बट इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को भी एक और नेम है, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दोनों में क्या डिफरेंस है। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में आंसर आपका इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन होता है, और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जो बाद में आने वाला है, इस केस में आपको वो इंटीग्रल भी सॉल्व करना पड़ता है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्या। अभी इन तीनों के दोनों सेट के फॉर्मूलेज आपको है ना। फर्स्ट सेट में फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एफ ऑफ लैम्बडा। क्या है फॉर्मूला, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू ई रेस टू माइनस आई लैम्बडा यू डी यू। बट अगर वो फंक्शन इवन आता है तो आपका जो फॉर्मूला है वो कोसाइन में जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। उसका क्या है फॉर्मूला, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू, ये टर्म की जगह पे आता है कॉस लैम्बडा यू डी यू। अगर फंक्शन आपका ऑड आता है तो ये फॉर्मूला जाता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में। ओके, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू साइन लैम्बडा यू डी यू, करेक्ट। सिमिलरली इनवर्स में, इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे अभी कैपिटल एफ ऑफ लैम्बडा, इनवर्स मतलब इसका इनवर्स, तो ये वो आ जाएगा अंदर, ई रेस टू आई लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा, ये होता है इनवर्स का फॉर्मूला। बट अगर फंक्शन इवन है तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या आता है, 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी। इवन है तो यहाँ पे एफ सी आता है, बाकी चीजें एज इट इज, सॉरी बाकी नहीं, मतलब ये भी चेंज होता है। इवन मतलब कॉस लैम्बडा एक्स से डी लैम्बडा, ठीक है। अगर वो फंक्शन आपका ऑड आता है यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई
0 to infinity fs ऑफ लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा, इतना ही है। ओके, अभी आपका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रल और इनवर्स में क्या डिफरेंस है। ओके, आप बोल रहे हो कि इंटीग्रल मतलब यही है, इनवर्स मतलब यही है। इंटीग्रल मतलब आपको बस ये एफ ऑफ लैम्बडा कैलकुलेट करके यहाँ पे रख देना है। इनवर्स मतलब क्या है, ये इंटीग्रल भी सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे भी इंटीग्रल मतलब क्या है, बस एफ सी ऑफ लैम्बडा कैलकुलेट करके यहाँ पे रख दो, जो अभी हमने किया था ऊपर। ओके, रख दिया और आपका आंसर मिल गया। इनवर्स मतलब, इनवर्स में क्या होता है कि ये इंटीग्रल भी आपको सॉल्व करना है, मतलब ये राइट साइड का पार्ट आपको एक्चुअली सॉल्व करना है। आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, अभी आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना होगा cos लैम्बडा एक्स अपॉन m स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर का, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स। ओके ओके, इज दिस क्लियर और नॉट, टेल मी नाउ एवरीवन। ओके, हम बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले हैं, सो डोंट वरी। आप देखो इसमें अराउंड 50 स्लाइड है, एक टॉपिक है बस ये, तो बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाले, तो ये 100% क्लियर होगा। ठीक है, बट जो जो क्वेश्चन है आप वो पूछो, तभी मुझे समझ में आएगा कि क्या क्या मुझे ज़्यादा फोकस करना है। ओके सो आई थिंक टाइम इज ओवर। ओके, सो प्लीज पुट योर रोल नंबर इन चैट बॉक्स फॉर योर अटेंडेंस। पुट योर रोल नंबर इन चैट बॉक्स। If you still have any doubt, you can tell me directly.